first class of Jha. Okay, now today we will discuss the exercise number 7.2. Okay, there are 8 questions in this exercise, and I will discuss all the questions, and you will try to learn how to do the questions. Why we are doing like that? You have to think about that. Okay, and try to do more and more questions. Okay, from refreshers and टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन तो मैं डिस्कस कर ही रहा हूँ, और साथ में आप रिफ्रेशर्स के कुछ क्वेश्चंस भी डिस्कस अपने साथ अपनी प्रैक्टिस करिए उसकी, एंड और वीडियो जरूर देखिए. फर्स्ट क्वेश्चन इज, आई हैव बुक. ओके, नाउ इन दिस फर्स्ट क्वेश्चन इज, इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC, AB is equal to AC and the bisector of angle B and C intersect each other at point O. Join A to O, show that OB is equal to OC and OA bisects angle A. So in this question, this is a triangle ABC in which AB is equal to AC, it is given, and OB is the bisector of angle B and OC is the bisector of angle C, meeting at point O, and O is joined to A. Now we have to prove that OB is equal to OC and angle 5 is equal to angle 6, so that we can prove that AO is the bisector of angle A. Okay, so first of all, you know that अगर किसी ट्राइंगल की दो साइड्स बराबर होती हैं तो उनके आमने सामने के एंगल भी बराबर होते हैं. ठीक है, सो सिंस AB is equal to AC given, therefore angle B is equal to angle C. ये पूरा एंगल B ये पूरे एंगल C के बराबर होगा. एंगल अपोजिट टू द इक्वल साइड ऑफ अ ट्राइंगल, एंगल्स opposite to equal sides of a triangle, आप लिख लीजिएगा, angles opposite to the equal sides of a triangle are equal to each other. हमने ये पहले ही वीडियो में पढ़ लिया था. Now अगर B is equal to C है तो half of B must be equal to half of C as per the Euclid axiom. दो चीजें बराबर होती हैं, उनके हाफ भी बराबर होते हैं. ठीक है, therefore इससे हमें क्या मिलेगा कि एंगल 1 is equal to एंगल 3 हो सकता है, और एंगल 2 is equal to एंगल 4 हो सकता है. half of angle B is equal to half of, this is also half of angle B and this is half of angle C, and half of angle B is 2 is also half of angle 2 and 4 is also half of angle C. ठीक है, तो इस तरीके से ये आ गया. अब देखिए ये ट्राइंगल हम लेंगे, सिंस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4 है, देयरफॉर हम कह सकते हैं OB इज इक्वल टू OC. अगर किसी ट्राइंगल में दो एंगल बराबर होते हैं तो उनके अपोजिट साइड्स भी बराबर होते हैं. तो यहां पर आएगा साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल, साइड्स अपोजिट टू द इक्वल एंगल्स, इसका अपोजिट. अब देखिए ये ट्राइंगल लेंगे हम, ठीक है, और ये ट्राइंगल, इन दोनों ट्राइंगल्स में देखिए, इन ट्राइंगल AOB, इन triangle AOB and triangle AOC. See, AB is equal to AC given. ठीक है, AB is equal to AC. Correct? Angle 1 is equal to angle 2.
sorry, angle 1 is equal to angle 3 proved above, and AO is equal to AO, ये कॉमन साइड है, therefore triangle AOB will be congruent to triangle AOC by using SAS. Therefore यहां पे लिख दे रहा हूं मैं, angle 5 is equal to angle 6 CPCT. Hence we can say that AO bisects angle A and hence proved. Okay, समझ में आ गया आपको? Now student, question number 2. In triangle ABC, AD is the perpendicular bisector of BC. Show that triangle ABC is an isosceles triangle in which AB is equal to AC. So in this question it is given that this is a triangle ABC, and AD is the perpendicular bisector. This is perpendicular and also it is bisector. It means BD is equal to DC. Now you have to prove that AB is equal to AC. ठीक है, तो स्टूडेंट्स में करना क्या है, AB is equal to AC आपको प्रूव करना है. ठीक, इट्स वेरी इजी. नाउ ये दोनों ट्राइंगल्स को अगर देखिए, ये AB is coming in this triangle ADB and AC is a part of triangle ADC. So we have to prove that triangle ADB and ADC are congruent. Okay, now in triangle ADB and triangle ADC, see, AD is equal to AD. This is common side. Okay, now angle ADB is equal to angle ADC is equal to 90 degree. It is given, and BD or DB is equal to DC. DB is equal to DC. This is also given because it is given that AD is the perpendicular bisector of BC. BC का perpendicular भी है, bisector भी है. ठीक है, bisector का मतलब दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने वाला. ओके, नाउ अब ये देखिए, दोनों triangle ADB will become congruent to triangle ADC by using SAS, side angle side. साइड एंगल साइड, ये देखिए साइड एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए. देयरफॉर वी कैन से दैट AB is equal to AC and hence proved by using CPCT. Now sir, question number 3. ABC is an isosceles triangle in which altitude BE and CF are drawn to equal sides AB and AC respectively. Show that these altitudes are equal. Okay, now in this question, ABC is a triangle in which AB is equal to AC and BE and CF are the BE and CF are the perpendiculars on the side AC and AB respectively. B is perpendicular on AC and CF is perpendicular to AB, and we have to prove that if AB is equal to AC, then these altitudes are also equal to each other. ठीक है, so in this question what we do, ये जो दो ट्राइंगल दिख रहे हैं ना, BFC और ये जो दिख रहा है CEB, ये जो दोनों ट्राइंगल है, इन दोनों ट्राइंगल्स को आप कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे तो ही ये दोनों ट्रायंगल, ये साइड्स इक्वल प्रूव हो सकते हैं. सो व्हाट वी डू, अब क्या करना होगा इसमें. ठीक है, तो इसमें देखिए, इन ट्रायंगल BFC
and triangle CEB, CEB, और हमें प्रूव करना है BE is equal to CF. ओके, अब देखिए यहां पर सिंस AB is equal to AC है, ये गिवन है, therefore ये जो एंगल होगा पूरा एंगल B will be equal to angle C. Therefore angle B is equal to angle C. ठीक है, एंगल अपोजिट टू द इक्वल साइड, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ ट्राइंगल ABC. नाउ अब देखिए दोनों ट्राइंगल्स में ये एंगल B इन ट्राइंगल लिख दिया ऊपर मैंने, एंगल B is equal to angle C. Now angle B is equal to angle C. Angle F is equal to angle E is equal to 90 degree. यहां पे आप लिख देंगे proved above. And आप देख रहे हैं BC is equal to CB. ये एक कॉमन साइड है दोनों ट्राइंगल में, therefore triangle BFC will be congruent to triangle CEB. ठीक है, by using angle side. ठीक है, तो ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए. अब आप लिख सकते हैं सीधे सीधे कि BE, ये देखिए यहां पर आएगा आपका FC इज इक्वल टू, यहां से आएगा EB, FC इज इक्वल टू EB. ठीक है, सो बाय यूजिंग CP इन दिस हमको प्रूव करना था एल्टीट्यूड आर इक्वल, देयरफॉर वी हैव प्रूव्ड नाउ द एल्टीट्यूड CF इज इक्वल टू एल्टीट्यूड EB. ठीक है, समझ में आ गया आपको? Now students, question number 4. ABC is a triangle in which altitudes BE and CF to the sides AB and AC and AB are equal. Show that triangle ABE is congruent to triangle ACF and AB is equal to AC. Therefore, triangle ABC is an isosceles triangle. ठीक है, इस क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है कि ये ट्रायंगल एबीसी है, यहां से एक एल्टीट्यूड ड्रॉ किया गया बीई और यहां से एक एल्टीट्यूड ड्रॉ किया गया सीएफ, एंड दीज एल्टीट्यूड्स आर इक्वल टू ईच अदर, बोथ ऑफ देम इक्वल टू ईच अदर. नाउ वी हैव टू प्रूव दैट द ट्रायंगल, ये जो ट्रायंगल है एईबी एंड एएफसी आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर, देयरफॉर एबी इज इक्वल टू एसी. ठीक है, तो ये ट्राइंगल को हमें आइसोसेलेस प्रूव करना है. अब देखिए, अगर हम ये नीचे के दो ट्राइंगल लेते तो हम इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव नहीं कर सकते थे, क्योंकि हमें मेरे पास में हमको ये पता रहता है कि 90 है, ये राइट साइड कॉमन है, बट थर्ड थिंग नहीं मिलती. इसलिए हमने ऊपर वाले दो ट्राइंगल, आपके बुक में ही लिखा हुआ है कि इसको प्रूव करिए, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करिए. ठीक है, तो इन ट्राइंगल AEB एंड ट्राइंगल AFC, अब आप देखिए इसमें एंगल A इज इक्वल टू एंगल A है, दैट इज कॉमन टू बोथ द ट्राइंगल्स. ठीक है, एंड एंगल E इज इक्वल टू एंगल F. ये देखिए एंगल A इज इक्वल टू एंगल A, एंगल E इज इक्वल टू एंगल F. ठीक है, सो दिस इज इक्वल टू द 90 degrees. It is given that these are the perpendiculars. Okay, now one side is common to each other or equal to each other. इस triangle में आप देख रहे हैं कि EB is equal to FC. ये given है. ठीक है, because the altitudes are equal to each other, it is written in the question. So in this way, triangle AEB will become congruent to triangle AFC by using angle side.
Therefore we can say that इस ट्राइंगल में जो AB साइड है इक्वल टू ट्राइंगल AC, ये ट्राइंगल में AC, therefore AB is equal to AC by using CPCT. ठीक है, समझ में आया? ये ऊपर वाले ट्राइंगल लिए हैं ऐसे और एक ये ट्राइंगल लिया है इस तरह से है दोनों ट्राइंगल्स। इन दोनों ट्राइंगल में ये एंगल कॉमन है, ये दोनों 90-90 के हैं। सॉरी, इस ट्राइंगल में ये 90 है, इस ट्राइंगल में इधर वाला 90 डिग्री है और ये साइड्स बराबर हैं आपस में। Therefore triangles are congruent to each other by using AAS. Therefore AB is equal to, यहां देखिए AB is equal to AC. Hence proved. Therefore we can write that triangle ABC is an isosceles triangle. Isosceles triangle. Okay? समझ में आ गया आपको? Question number 5. Triangle ABC and DBC are two isosceles triangles on the same base BC. Show that angle ABD is equal to angle ACD. So these are the two isosceles triangles ABC and BDC on the same base BC. ठीक है, मैंने इसको मिला दिया है, आप चाहे तो नहीं भी मिलाएंगे तो इसको दो तरीके से हम कर सकते हैं। हमें प्रूव करना है कि ये जो एंगल है ABD इज इक्वल टू ACD, इसको प्रूव करना है। तो फर्स्ट वाला जो मेथड है उसमें फर्स्ट मेथड और बहुत आसान मेथड है। हमको पता है कि जब दो साइड्स इक्वल होते हैं किसी ट्राइंगल के तो उनके आमने सामने के एंगल भी इक्वल होते हैं। सो आप लिख सकते हैं इन ट्राइंगल ABC AB is equal to AC given है, therefore angle 1 is equal to angle 2. Now in triangle BDC BD is equal to CD, ये भी given है, ठीक है, मैंने दोनों में गिवन लिख दिया है। Therefore angle 3 is equal to angle 4. Now we can do this, angle 1 plus angle 3 is equal to angle 2 plus angle 4. दो चीजें बराबर है तो उनके सम भी बराबर होंगे, ठीक है। तो आप देखिए ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो इसका सम इसके सम के बराबर होना चाहिए। तो ये हो गया आपका एंगल ABD is equal to angle ACD and hence proved. ये हो गया आपका दूसरा तरीका, ठीक है। उसके लिए मैं थोड़ा इसको मिटाता हूं। दूसरे तरीके में ये ट्राइंगल जो दिख रहा है ABD और ACD, इनको हम अगर कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दें तो भी ये दोनों एंगल्स बराबर हो जाएंगे, ठीक है। सो इन ट्राइंगल ABD and triangle ACD, इन दोनों ट्राइंगल में देखिए आप AB is equal to AC given है ना, and BD is equal to CD, this is also given because both triangles are isosceles to each other, sorry isosceles triangles, and you know that ये जो AD है ना ये कॉमन है, ये AD is equal to AD, AD is equal to AD, ये कॉमन साइड है। Therefore triangle ABD will be congruent to triangle ACD by using SSS. Therefore we can say that angle ABD is equal to angle ACD, okay, CPCT, ठीक है। डोंट बी डिस्टर्ब, थोड़ा काम चल रहा है यहां पर। क्वेश्चन नंबर 6, triangle ABC is an isosceles triangle in which AB is equal to AC. Side BA is produced to D such
that AD is equal to AB, show that triangle BCD is a right angle triangle. देखिए यहां पर एक ट्राइंगल है ABC, ठीक है, और ये ABC ट्राइंगल में AB और AC आपस में बराबर हैं। अब BA को प्रोड्यूस किया, BA को प्रोड्यूस करने का मतलब है यहां से ऐसे प्रोड्यूस किया। अगर AB लिखा होता प्रोड्यूस करना तो ये ऐसे होता, ठीक है। सो यहां पर BA को प्रोड्यूस किया गया है D तक, ये सच दैट BA इज इक्वल टू AD, ये इसके बराबर है, यहां D लिख रहा हूं। अब हमने इसको ज्वाइन किया। नाउ वी हैव टू प्रूव दैट एंगल ट्राइंगल BCB इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। अब इसमें वही प्रॉपर्टी यूज करनी है जो प्रॉपर्टी अपने, अगर साइड्स बराबर है तो एंगल भी बराबर होंगे, ऐसे वाला। तो अब देखिए इन ट्राइंगल ABC आप देख रहे हैं AB इज इक्वल टू किसके है, AC के, ये तो गिवन है ना, ठीक है। ट्राइंगल क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि ट्राइंगल में AB और AC बराबर है। इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला जो एंगल होगा 1 और ये एंगल जो होगा 2, ये आपस में बराबर होंगे। Therefore एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। आप लिखेंगे इसको एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ ट्राइंगल, हो गया। नाउ इन ट्राइंगल ADC, ये देखिए इन ट्राइंगल ADC इसमें दिया हुआ है AB और ये बराबर है, बट AB इसके बराबर है, ठीक है। सिंस AB और AD बराबर है और AB किसके बराबर है, AD AC की, तो AC और AD बराबर हो जाएंगे। तो आप लिखेंगे इसमें कि AD इज इक्वल टू AC, ठीक है। सिंस आप इसमें लिख दीजिएगा कि AD इज इक्वल टू AB and AB is equal to AC. This is the reason. तो AD is equal to AC हो गया, तो इसमें हम लिख सकते हैं कि एंगल 3 is equal to एंगल 4. Therefore angle 3 is equal to angle 4. The same reason, similarly. Reason must be written here. अब देखिए इन ट्राइंगल BCD, इस ट्राइंगल देखिए एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180 डिग्रीज, एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है। सो एंगल B तो है 1 प्लस एंगल C है एंगल 2 प्लस एंगल 4 और एंगल D कितना है, एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। अब देखिए एंगल 1 की जगह पर हम लिख सकते हैं एंगल 2, एंगल 2 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 3 की जगह पर हम लिख सकते हैं एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। एंगल हमें ये प्रूव करना है कि यहाँ 90 है, इसलिए हमने एंगल 1 की जगह पर एंगल 2 लिखा और एंगल 3 की जगह पर एंगल 4 लिखा, जिससे हमें कंसीडर करना है ये वाले एंगल्स, ठीक है। तो ये हो गया आपका ट्वाइस ऑफ एंगल 2 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब ये 2 यहां ले जाके डिवाइड कर देंगे तो मिलेगा एंगल 2 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 90 डिग्री। हेंस एंगल C मतलब एंगल BCD is equal to 90 degree. In this way we can say that the triangle is a right angle triangle. ठीक है। Question number 7. ABC is a right triangle in which angle A is equal to 90 degree and AB is equal to AC. Find angle B and angle C. Okay, now this is a right triangle.
in which angle A is 90 degree and AB is equal to AC. This is given. In this question it is given. So आप देख रहे हैं कि एंगल B और ये एंगल C, थोड़ा सा इसको सीधा बना लीजिएगा, मैं मेरे से थोड़ा टेढ़ा हो गया। ओके, अब देखिए इन ट्राइंगल ABC, AB is equal to AC given है, therefore angle B is equal to angle C. Angles opposite to equal sides of a triangle. Okay, now in triangle ABC, angle A plus angle B plus angle C is equal to 180 degree. That is called angle sum property. Okay, तो एंगल सम प्रॉपर्टी के हिसाब से ये एंगल 90 डिग्री का है, तो इसको ले जाकर मैं वहां पे 90 डिग्री प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। Therefore एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 90 डिग्री, बिकॉज ये 90 वहां जाके माइनस हो गया। अब देखिए एंगल B एंगल C के बराबर, तो हम लोग लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री। यहां एंगल B लिख लीजिए, तो एंगल B प्लस एंगल B ट्वाइस ऑफ एंगल B। आप एंगल C लिख सकते हैं एंगल B की जगह, नो प्रॉब्लम। देयरफॉर आप देख रहे हैं कि एंगल B जो है वो हो गया 45 डिग्री का, क्योंकि ये 2 यहां जाके डिवाइड हो जाएगा। ट्वाइस ऑफ एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री, देयरफॉर एंगल B इज इक्वल टू 40 डिग्री। देयरफॉर एंगल C जो कि बराबर है वो भी 45 डिग्री का ही होगा। ठीक है, आपको समझ में आया? इसको बोलते हैं आइसोसेलेस राइट ट्राइंगल, और आइसोसेलेस राइट ट्राइंगल में दोनों एक्यूट एंगल्स 45 के ही होते हैं। आइसोसेलेस राइट ट्राइंगल, both the acute angles must be 45 degree, must be of 45 degree. Okay, last question 8 of this exercise. Show that the angles of an equilateral triangle are 60 degree each. How can you prove कि अगर एक ट्राइंगल इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो उसके सारे एंगल 60 डिग्री होंगे? तो देखिए आपको क्या करना है, ये ट्राइंगल बना लीजिएगा इक्विलेटरल। ओके, अब देखिए इक्विलेटरल ट्राइंगल में सारे साइड्स आपको पता है कि बराबर होते हैं आपस में। ठीक है, तो करना क्या होगा, देखिए अगर ये साइड इसके बराबर है तो एंगल B और एंगल C बराबर है, एंगल अपोजिट टू द इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। ठीक है, एंगल B इज इक्वल टू एंगल C। अब देखिए अगर AB को BC के बराबर लेंगे तो एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, मतलब एंगल A इज इक्वल टू एंगल C हो जाएगा। एंगल अपोजिट टू द इक्वल साइड्स, ये बराबर इसके, तो इसके सामने का एंगल इसके सामने का एंगल के बराबर होगा। तो अब देखेंगे कि ये तीनों एंगल्स आपस में हो गए बराबर, और तीनों का सम कितना होता है 180 डिग्री। इसलिए हम कह सकते हैं कि तीनों एंगल बराबर भी हैं। तीन ऐसे नंबर जिनका सम, तीन ऐसे एंगल जिनका जो इक्वल है और सम 180 है, तो वो तीनों एंगल 60 60 60 के ही होंगे। ठीक है, तो इसको करेंगे कैसे? इन ट्राइंगल ABC, AB इज इक्वल टू AC, आप गिवन लिख सकते हैं इसको, गिवन। Therefore angle AB is equal to angle B is equal to angle C. तो आप इसको लिख सकते हैं angles opposite to equal sides। ठीक है, ये हो गया। Now आप ये भी लिख सकते हैं AB is equal to BC, ये भी गिवन है क्योंकि ट्राइंगल इज इक्विलेटरल। सो
angle A is equal to angle C. Therefore, angle A is equal to angle C. Same reason. ठीक है? Therefore, we can say that angle A is equal to angle B is equal to angle C, because angle C is equal to angle B and angle C is equal to angle A. So angle A is equal to angle B, must be equal to angle A is equal to angle B. So इन तीनों का ये तीनों इक्वल हो गए आपस में. Now angle A plus angle B plus angle C is equal to 180 degree angle sum property. तो देखिए एंगल A, एंगल B, एंगल C तीनों बराबर भी हैं और तीनों का सम 180. तो हम इसको लिख सकते हैं थ्राइस ऑफ एंगल A. यहाँ भी A लिख लीजिए, यहाँ पे भी A लिख लीजिए, या जो भी आपको चेंज करना हो. आपको एंगल B प्रूव करना 60 डिग्री तो भी यहाँ भी लिख लीजिए, क्योंकि तीनों आपस में बराबर है. थ्राइस ऑफ एंगल A इज इक्वल टू, या आप इनको तीनों की जगह पे x लिख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं. सो 180 डिग्री. देयरफॉर एंगल A इज इक्वल टू एंगल 60 डिग्री. इसको डिवाइड करेंगे तो ये 60 डिग्री आएगा. देयरफॉर वी कैन से दैट angle A is equal to angle B is equal to angle C is equal to 60 degree and hence proved. ठीक है स्टूडेंट. नेक्स्ट इज एक्स्ट्रा क्वेश्चन. Triangle ABC and DBC are two triangles on the same base BC such that A and D lie on the opposite side of BC. AB is equal to AC and DB is equal to DC. Show that the AD is the perpendicular bisector of BC. So in this question, it is given that these are two isosceles triangles on the opposite side of BC. This is the side BC and this is the points BD is equal to DC and AB is equal to AC, and we have to join this and we have to prove that this is the midpoint of BC. O is the midpoint of BC. It means we have to prove that AD bisects BC. AD BC को बाइसेक्ट कर रही है, मतलब BC बाइसेक्ट हो रही है. BO is equal to OC. ये प्रूव करना है, ये नहीं प्रूव करना है AO is equal to OD. ठीक है. इसको एक और तरीके से कर सकते हैं. देखिए पहला तरीका ये है कि ये एक काइट है. काइट में ऐसा होता है कि ये साइड इसके बराबर, ये साइड इसके बराबर, और काइट के जो डायगोनल्स होते हैं वो एक डायगोनल दूसरे को बाइसेक्ट करता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करता है. तो वो भी लिख के कर सकते हैं आप, ये प्रॉपर्टी है काइट की. लेकिन यहां पर कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल यूज करके करना है तो क्या करेंगे. सबसे पहले आप देखिए हम क्या कर रहे हैं. ये जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACD, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे. ठीक है. तो कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने से क्या होगा. AB is equal to AC, BD is equal to CD. It is given that both are given in the question. ठीक है. Therefore and AD is common. AD is equal to AD. अभी कुछ क्वेश्चन में, एक क्वेश्चन में आपने ऐसा किया था. ठीक है. ये हो गया आपका कॉमन साइड. Therefore, triangle ABD will be congruent to triangle ACD by using SSS. Correct? अब देखिए क्या करना होगा. हम इससे लेंगे CPCD में एंगल 1 is equal to एंगल 2. ठीक है. Therefore, angle 1 is equal to angle 2 by using CPCT. ठीक है. अब देखिए ये ट्राइंगल लेंगे ABO एंड ACO. नाउ ट्राइंगल इन ट्राइंगल ABO एंड ट्राइंगल ACO, इसमें देखिए
AB इज इक्वल टू AC गिवन है, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ठीक है, अभी प्रूव किया आपने, एंड AO इज इक्वल टू AO, ठीक है, कॉमन साइड है, देयरफॉर ट्राइंगल ABO इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACO बाय यूजिंग SAS, ठीक है। इससे ये प्रूव हो गया, दो चीजें इसमें प्रूव होती है, एक तो हो गया BO इज इक्वल टू OC एंड दिस एंगल प्लस ये एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, बट एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री बाय यूजिंग लीनियर पेयर, देयरफॉर वी कैन से दैट एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब देखिए दोनों चीजें प्रूव हो गई, एक तो BO इज इक्वल टू OC प्रूव हो गया और ये दोनों एंगल 90 के हो गए, क्योंकि दोनों एंगल बराबर है और दोनों का सम 180, तो ये दोनों एंगल हो गए 90 के। तो क्या प्रूव हो गया? AD बाइसेक्ट्स BC। ओके, समझ में आया? मोर एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। ABCD इज अ पैरेललोग्राम and BP and DQ are the perpendicular on AC. Both are the perpendiculars drawn on AC. We have to prove that BP is equal to DQ. ये दोनों को हमें आपको बनाना पड़ेगा, इक्वल प्रूव करना पड़ेगा। तो इसका तरीका करिए आप, क्या तरीका है इसको करने का कि इसमें ये देखिए, ये जो DQ है ये ट्राइंगल में आ रहा है, नीचे उधर वाले ट्राइंगल में भी आ रहा है, लेकिन हम क्या करेंगे, ये ट्राइंगल लेंगे और साथ में ये वाला ट्राइंगल लेंगे जिसमें BP है। अब इन दोनों ट्राइंगल्स को आपको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, ठीक है। आपको पता है कि अगर ABCD is a parallelogram, therefore we can say that AD is parallel to BC or CB, ठीक है, AD is parallel and AC is transversal। मैं केवल ट्रांस लिख के छोड़ दे रहा हूं। Therefore we can say that angle 1 is equal to angle 2। Therefore angle 1 is equal to angle 2। ये हो गया आपका alternate interior angle। Now in triangle AQD and triangle CPB, इन दोनों ट्राइंगल में आप देख रहे हैं कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 है, ठीक है, एंगल A एंगल C के, और एंगल Q इज इक्वल टू एंगल P। ये देखिए एंगल Q इज इक्वल टू एंगल A इज इक्वल टू एंगल C एंड एंगल Q इज इक्वल टू एंगल P एंड AD इज इक्वल टू BC, क्योंकि ABCD is a parallelogram and opposite sides of parallelogram are equal to each other. Therefore, triangle AQD will be congruent to triangle CPB by using angle side. Therefore, we can say QD is equal to PB। ओके, सो ये देखिए दोनों एल्टीट्यूड्स बराबर हो गए, ठीक है, समझ में आ गया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 7.3 और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन के साथ।